Hello my dear students, today we will discuss the most important topic of chapter electricity, and the topic for today's video is Ohm's law. We will discuss some questions related to the Ohm's law in this video, and our questions are: first, what is Ohm's law? Then ohmic and non-ohmic conductor, then graphical representation of Ohm's law. Then we will discuss numericals based on Ohm's law, which are very important for the CBSE board examination. And at last we will discuss NCERT questions based on Ohm's law. Now, the Ohm's law gives the relation between the voltage and the potential difference. According to Ohm's law, it states that electric current is directly proportional to potential difference between 2 points provided its temperature remains constant. It means अगर किसी भी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा, तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे बिटवीन द two ends of a conductor, electric current also increases. As we all know, potential difference is responsible for the flow of electric conductor in a wire, electric current in a wire. If there is no potential difference between the two ends of a conductor, then no current flows through the conductor. So Ohm's law gives the relation between the V and the I, but the main condition which is very necessary for Ohm's law is कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए तभी ओम्स लॉ फॉलो होगा. फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक. नाउ ओम्स लॉ गिव द डिफरेंस रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली proportional to the potential difference, which we will represent in this equation. V is proportional to I, and as we all know, in physics, when we remove any proportionality symbol, there always comes a constant, and in this condition the constant is R. यहाँ पे जो हमारा constant आया है वो है क्या? R. तो next is from the above equation R equals to V upon में I. तो R इज ए कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर. मतलब कोई भी कंडक्टर हो उसका R की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, बट कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो R की वैल्यू भी चेंज होगी. ठीक. मीन्स अगर कोई कंडक्टर चेंज करें या हम टेम्परेचर चेंज करें उसी सेम कंडक्टर का, देन R की वैल्यू चेंज होगी. R की वैल्यू कांस्टेंट तभी होगी जब उसकी फिजिकल कंडीशन कंडक्टर की मीन्स टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है. तो हियर द कांस्टेंट इज R, विच इज नोन एज रेजिस्टेंस. इस R को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. एंड वी विल डिस्कस द रेजिस्टेंस इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट क्लास. रेजिस्टेंस को हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है. ठीक. नाउ Now the graphical representation of Ohm's law. VI graph means the graph between the potential and the electric current is a straight line. ठीक है. VI ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है. स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? क्योंकि as we increases the potential difference, the current flowing through a conductor also increases linearly. जैसे जैसे हम potential difference increase करते हैं तो electric current भी increase करता है. तो ग्राफ will be straight line. ठीक. For ohmic conductor. Now the question is, what is ohmic conductor? Okay, now we will discuss what is ohmic conductor. Now ohmic and non-ohmic conductors.
Ohmic and non-ohmic conductors. Ohmic conductors are those conductor which obeys Ohm's law. मतलब वो कंडक्टर जो Ohm's law को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, that conductors are known as ohmic conductors. फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, मेटल्स, जो प्योर मेटल्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर होते हैं. Now the non-ohmic conductor are those conductor which do not obey Ohm's law. जो Ohm's law को follow नहीं करते हैं, obey नहीं करते हैं, that are known as non-ohmic conductor. Like for example, filament of a bulb, diodes you will study in class 12th. Semiconductor, as you all know, semiconductors are those conductors whose conductivity lies between the प्योर कंडक्टर एंड द इंसुलेटर. तो जो हमारे डायोड, सेमीकंडक्टर और जो फिलामेंट होते हैं ये नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, मींस ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. और जो हमारे कॉपर, एल्यूमिनियम वायर होते हैं जो कि जनरली हम अपने घर में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो वो हमारे ओमिक कंडक्टर्स होते हैं. इट मीन्स दे ओबेज ओम्स लॉ. Okay, now I think Ohm's law is clear to everyone. Now we will discuss the numericals based on Ohm's law, which are very important for the CBSE board examinations. Now there is two types of numericals which are based on Ohm's law. The first one is very simple type, which is directly based on the formula which we have derived from the Ohm's law. The formula is V equals to I into R. And the second type of numerical is based on the graphical representation of the Ohm's law. It means उसमें आपको या तो टेबल दी गई होगी और आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, या ग्राफ दिया गया होगा तो उससे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. Now moving towards the first question, how much current means we have to find out value of current. So we have written I equals to question mark. जो चीज़ हमें find out करनी होती है उसके लिए हम question mark लगा देते हैं. तो how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source? 220 volt. वोल्ट्स में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. इट मीन्स हेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट. सो वी हैव रिटन V इक्वल्स टू 220 वोल्ट. ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम. रेजिस्टेंस कितना है, 1200 ओम. तो रेजिस्टेंस इज गिवन R इक्वल्स टू 1200 ओम. इट मीन्स ओम्स लॉ में हमारे पास 3 टर्म्स थे V, I, R. Now 2 terms are already given in this question. It means V and R is given and we have to find out I. Now the question is very simple. From Ohm's law, V equals to I into R. We will put the value of V and R in the formula. So V equals to 220 volt, R equals to 1200 ohm. We have to find out I. So I equals to 220 upon में 1200, तो I equals to 0.183 एम्पियर. दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ में इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं होता है, ठीक है. दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज V इक्वल्स टू I R. इस फॉर्मूले में 3 टर्म्स हैं, 3 क्वांटिटीज हैं, V I R. तो 2 क्वांटिटीज विल बी गिवन टू यू एंड द थर्ड वन यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन V and R is given, you have to find out I. It may be any question in which V and I will be given to you, you have to find out R. तो R equals to V upon में I. अगर हमें R निकालना हो तो R क्या हो जाएगा, V upon में I. Okay, I think this numerical is clear to everyone. And the most important thing which I want to tell you that I have taken this numerical from the NCERT book, so you can go through the book also.
Okay, now moving towards the next question. The next question is given register for the corresponding values of potential difference V across the register are given below. It means बेटा कोई रजिस्टर है जिसकी आपके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. ये टेबल दी गई है I और V. I गिवन है एम्पियर में एंड V गिवन है वोल्ट में. तो I और V की वैल्यूज आप क्वेश्चन में दी गई हैं टेबल के फॉर्म में. नाउ what you have to do, first you have to draw the VI graph using this table and then you have to find out the value of resistance of this conductor. Okay, so first we will draw the VI graph. For VI graph we will take V on y axis and I on x axis. I एम्पियर में है, V पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में है. तो हमने जैसे जनरली हम मैथ्स में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वैसे ही हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है ग्राफ. फर्स्ट जो वैल्यू गिवन है 0.5 पे V है आपका 1.6. तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये मार्क किया. सेकेंड पॉइंट I है आपका 1 एम्पियर एंड V 3.4 एम्पियर. सेकेंड पॉइंट हमने ये मार्क कर लिया. थर्ड पॉइंट इज 2 एम्पियर एंड 6.7 वोल्ट. थर्ड पॉइंट हमने मार्क कर लिया. इन द सेम मैनर वी विल मार्क ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. ओके, नाउ वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स. सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. और ग्राफ जो है हमेशा VI ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन आता है. अगर आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है इट मीन्स वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. ओके, नाउ वी हैव already drawn the graph. Now using this graph we have to find out the resistance. So we know from Ohm's law R equals to V upon में I, but here I have written delta V upon में delta I. Delta represents the small change. ठीक, तो बेटा यहाँ पे हम ग्राफ का यूज करके हम R की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम इस स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे. स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कोई भी हम 2 पॉइंट्स लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ये 3rd एंड 4th पॉइंट लिया है. आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं. ये कोई कंपलसरी नहीं कि आप हमेशा यही 2 पॉइंट्स लेंगे. कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं. हमने यहाँ पे 3rd और 4th पॉइंट लिए हैं. उसका ये स्लोप है. अब स्लोप का फॉर्मूला होता है वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन में हॉरिजेंटल डिस्टेंस. तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस है डेल्टा V, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है डेल्टा I. तो R का फॉर्मूला भी यही होता है डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I. तो बेटा डेल्टा V फाइंड आउट करने के लिए जो V का जो ऊपर वाला पॉइंट है जिसकी वैल्यू हमारी है 10.2 वो रखेंगे. फिर V का y एक्सिस पे जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी वैल्यू 6.7 वो रखेंगे. इन द सेम मैनर हम I की वैल्यूज रखेंगे ग्राफ से 3 minus 2 and then we will solve these value 3.5 upon में 1 इक्वल्स टू 3.5 ओम. तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 ओम. आई हैव टेकन दिस न्यूमेरिकल फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज. यू कैन गो टू द बुक ऑल्सो. ये क्वेश्चन मैंने NCERT की एक्सरसाइज से लिया है. तो मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया है. आप एक बार इसको फिर से सॉल्व करके देखना, ग्राफ प्लॉट करके देखना. आई थिंक द न्यूमेरिकल इज क्लियर टू एवरीवन. ओम्स लॉ में बस यही 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं. एक सिंपली जो बेस्ड होता है फॉर्मूले पे दैट इज V इक्वल्स टू IR पे, एंड द सेकेंड विच इज बेस्ड ऑन द ग्राफ. और ग्राफ का न्यूमेरिकल ये मैंने सॉल्व कर दिया है. ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू and we will discuss the next topic in our next video.